ये बात कुछ दिनों पहले की है। ठंड का मौसम चल रहा है तो मैं बहुत स्पीड से वो घर आ रहा था। मैं एक एजेंसी में काम करता हूँ जहाँ से मैं घर आ रहा था वापस, राइट। सो वहाँ से मैं आ रहा था बाइक से और फुल स्पीड में आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे और ठंड लग रही थी। और मुझे रास्ते में दो दोस्त मिले मेरे, जो कि मेरे जिम के दोस्त हैं। उनमें से एक 6'3" का है और एकदम बल्की है, और एक 5'7" का है और वो भी एकदम बल्की है, राइट। मैं फिर उनके लिए रुका, उनसे बात करने लगा थोड़ा सा। और बातों ही बातों में मेरे गली की कुछ आंटी वगैरह आ रही थी, जो कि मुझे लगा कि अगर हमारी बातें सुनेंगी तो मेरे लिए ट्रबल हो सकता है। सो आई वॉज लाइक कि चुप हो जाओ तुम लोग। पर वो हंसे जा रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे और मुझे थोड़ा इग्नोर भी कर रहे थे। तो आई वॉज लाइक, मैंने थोड़ा सा अपनी वॉइस को बढ़ाया एंड मैंने थोड़ा लाउड में बोला कि दोनों चुप हो जाओ। एंड दे वर लाइक स्केर्ड, लाइक नॉट स्केर्ड वाला कि वो हमें डर लग रहा है, लाइक दे वर जस्ट क्वाइट, like they were just quiet, like they just obeyed me. And that type of stuff, I know it sounds cringe. Don't tell me that it sounds cringe, because I know it. But at that moment I felt so good, like I just ordered two men and they listened, like they just obeyed me, right? And at that moment I realized the power of having a deep voice, right? मैं अब तक अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करता था एंड समथिंग जिसको मैं बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेता था. But now that I realize it, it actually is a good power to have. Like, not a power, it makes me sound cringe, but it's a power if you think about it. Having a deep voice in the modern world is something that is very rare. Having a deep voice can get you a lot of career opportunities, a lot of attraction from women, and I know that is something that you're interested in most. क्योंकि सोशल मीडिया ने इस चीज़ को एक ऐसा बना दिया है कि हैविंग ए डीप वॉइस विल बी लाइक एवरी वुमन विल फॉल ऑन ए नीज एंड समथिंग लाइक दैट. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, ट्रस्ट मी. Having a deep voice generally opens respect and command line for you. It's like whenever you speak, people will listen to you attentively. People will get quiet when you speak, and people will actually look at you when you speak. They won't look at their phones scrolling through social media. And that is something that you have to have. Like, that is the advantage that I am willing to give you if you just listen to me and understand what I'm trying to say. You do not have a deep voice because तुम्हारा genetics बुरे है. यू डो नॉट हैव अ डीप वॉइस बिकॉज तुमने अभी तक उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया है. तुम सालों से उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो. दैट इज़ योर ओन वॉइस. वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव बिन स्पीकिंग रॉन्ग थ्रू ऑल ऑफ द ईयर्स. You are speaking through your throat. That is something that you should not be doing. You should actually speak through your diaphragm. That is the correct way of speaking. And I have told this 1,000 of times on my channel, but nobody listens to me. Speaking through your diaphragm is basically you're calming yourself and actually controlling your breathing patterns. And when you control your breathing patterns, you actually get calm, your nervous system gets relaxed, and that is when you get huskier and deeper. You know what I promise to you? You won't get a deep voice. That is something that I promise to you. But I am telling you that you will get a huskier voice. A huskier voice is that depth. Whenever somebody speaks, that part of their voice that, just feels like a breath, but it's a word. That huskiness that people find so attractive. दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड हस्कीनेस. एक डीप वॉइस में वो हस्कीनेस जनरली होता है, एक वाइब्रेशन फील होती है. एंड हाउ टू एक्चुअली नो दैट तुम्हारी वॉइस डीप हो गई और तुम उसे फोर्स नहीं कर रहे हो? इट इज़ सिंपल. व्हेन यू फील वाइब्रेशन इन योर चेस्ट व्हेन यू स्पीक एंड योर वॉइस इज़ एक्चुअली डीप, यू विल नो कि तुम्हारी वॉइस नेचुरल है या फिर हस्कियर है, नेचुरली विदाउट यू फोर्सिंग इट. And I feel it all the time. Like, I feel my voice, my chest just vibrating through my voice. It's like my voice is just coming out of my mouth like in rumbling form, right? And this is something that I feel a lot, even in my stomach. So you have to understand this. A husky voice, a deep voice is something that you have to have, whether you like it or not. Because as a man, you're not supposed to sound shrill. Even if you're not genetically blessed, you are still supposed to sound more huskier and deeper than you usually are. तुमने ऐसे देखा होगा सलमान खान और शाहरुख खान की पुरानी मूवीज़ में उनकी वॉइस कितनी बच्चों की तरह साउंड करती थी, लाइक अ बॉय, राइट. पर अभी की मूवीज़ देखो तुम उनकी, टाइगर जिंदा है, पठान, उसमें उनकी वॉइस कितनी ज़्यादा लाइक हैवी साउंड करती है, बिकॉज दे आर सपोज टू साउंड लाइक अ मैन. दे आर सपोज टू साउंड लाइक दे हैव ग्रोन ओल्ड एंड अ मैन साउंड्स लाइक दैट. लाइक उनकी वॉइस में एक वाइब्रेशन है. तुम शाहरुख खान की अभी वाली वॉइस सुनो जो तुमने कोई मूवीज़ में देखी होगी, वो डीप नहीं है. दैट इज़ हस्कियर, दैट इज़ मोर डोमिनेंट, राइट. एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बाय डायफ्राम ब्रीदिंग. और मैंने डायफ्राम ब्रीदिंग अपने पेट स्प्लिट में बहुत अच्छे से समझाई है, एंड उसमें तुम्हें सारे स्प्लिट्स मिल जाएंगे, लाइक लिटरल एक्सरसाइजेस जो कि तुम्हें पूरे दिन में फॉलो करने हैं. और मैं हर हफ्ते तुम्हारा रिव्यू लूँगा. लाइक मैंने 5 फेजेस बनाए हैं, उसमें हर फेज़ में तुम्हें एक्सरसाइज अलग अलग मिलेगी और तुम्हारे लिए एक्चुअली वर्क करने वाली वो चीज़ है. और मैं हर हफ्ते तुम्हारा रिव्यू लूँगा कि वो तुम्हारे लिए वर्क कर भी रही है या नहीं, या फिर तुम उसको गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हो. एंड मैं तुम्हें पर्सनल गाइडेंस दूंगा कि तुम्हारी वॉइस कैसे और इम्प्रूव हो सकती है, या फिर तुम्हारे डाइट में भी अगर कुछ मिस्टेक है तो मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी. तुम्हें अगर वो पेड स्प्लिट चाहिए, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी, आई विल गिव यू द लिंक. एंड अंटिल देन, ओन योर वॉइस.